Hello students, welcome back to social studies class. In our today's social studies class, we will start a new chapter. So this chapter is very important. You have to be attentive. Okay, we will start our civics part, chapter 5 of civics, how we govern our communities. So open page number 25 of civics part, that is unit 3. We live in India. Our country is divided into states. Country is having states. In the states there are many districts, right? State is having districts. Districts having villages. So this is India. Okay. I know India is not in a round shape, but imagine that this is India. India is having many states, right? There are 28 states. So there are many states in India. Okay. So in that states also there are many districts. So there are many districts, right? So in districts also there are villages. So we know India is a democratic country. Okay. The levels of government are central level, state level and local level. So local level government is further classified into two, that is municipality and village level. Okay, so one having village level and another municipality. We know we are having decentralization. Okay, decentralization means the power, the authority is break down, it is distributed among the levels. So our country is having a decentralized setup, that is the central government, then after state government, then after local government. In local government we are having two parts, okay, which has, for villages it has gram panchayat. Okay, so village level and city level, or we can say urban level, that is municipality. Okay, in this chapter we will study about local self government in rural and urban areas. This chapter is regarding the local self government in rural and urban areas. Communities, both urban and rural, require public utilities such as water supply, electricity, roads, educational institutions, and healthcare facilities. Children, communities which are staying in rural or in urban areas need these basic facilities. Okay, requires this public utility like proper water supply, electricity, road, developed road, educational institution and healthcare facilities. These are also called civic amenities. इसे हम civic amenities भी कह सकते हैं. The responsibility of managing and controlling the civil amenities, तो जो प्रोवाइड हम करते हैं, जो प्रोवाइड हमें होती है ये सिविक एमिनिटीज़, वो मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की. ओके, गवर्नमेंट is responsible to give us this basic amenities. Okay, the people of every village and town and city elect representative to govern their community.
डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, सब अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, राइट. वी नो दैट आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री. वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव through elections. And what happens next? Next is they form government, right? This system is therefore called local self government. Okay, the system at district level or at the village level is called local self government. In India, the local self-government body for a rural area is called the Panchayat, and for the district is called the municipality. District यानी कि urban areas. Okay, we are in the urban area, so we are having municipality. But गांव होते हैं वहाँ पर पंचायत होती है. Okay, so local level पे जो गांव होते हैं, विलेज होते हैं, उनके गवर्नमेंट कौन होते हैं? पंचायत. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज़, वो हमारे सारे सिविक एमिनिटीज़, जो हमारी फैसिलिटीज़ है, उनका मैनेजमेंट करते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं. पीपल फ्रॉम विलेजेस ऑल्सो इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. द पीपल, so those who are 18 year plus, okay, the citizens, those who are above 18 years or 18 years can vote and choose their representative. तो विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, सब जगह वोटिंग होती है और ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. So we all require this civic amenities. हमें प्रॉपर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर फैसिलिटी और रोड्स, ये सारी एमिनिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दे कंट्रोल एंड मैनेज दिस एमिनिटीज़ फॉर अस. Local government is divided into two parts, that is the panchayat for village level and the municipalities for district level or for urban areas. The advantages of local government. Local government are their representatives. Local people are their representatives, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहीं के रहने वाले होते हैं, लोकल होते हैं. सो लोकल पीपल और लोकल पीपल के रिप्रेजेंटेटिव दोनों अच्छे तरीके से सारी प्रॉब्लम समझते हैं. प्रॉब्लम ऑफ टाउन एंड विलेजेस आर प्रॉपरली अंडरस्टूड बाय देम. सो प्रॉब्लम्स आर नॉट निगलेक्टेड, इसलिए प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स को ध्यान में लेते हैं. एंड पीपल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली एज इट इज़ फॉर देयर ओन गुड. इसीलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो लोग प्रॉम्प्टली लाते हैं, क्विकली सॉल्यूशन देते हैं. ओके, क्योंकि उन्हें खुद को फील होता है, एक्सपीरियंस करते हैं वो भी प्रॉब्लम्स को. सेकेंड इज द एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स मेक द लोकल पीपल सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल. This enables them to act responsibly during the emergencies. So ये लोग प्रॉब्लम को खुद ही फेस करते हैं. जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, they experience and deal the problems, and because of this they get a good practice of dealing with problems. They become independent and more responsible. Because of this, in any emergency situation also they handle everything properly. For example, during cyclone or flood, they can start rescuing and relieving work before any help arrives from central or state government. तो आपत्ति के समय में, डिज़ास्टर के समय में भी ये लोग अपने हिसाब से
हेल्प जो होती है वो स्टार्ट करवा देते हैं. दे स्टार्ट हेल्पिंग एंड रेस्क्यूइंग. कोई हमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू टीम आए, रेस्क्यू करने के लिए आए, उनसे पहले ये लोग भी अपनी साइड से रेस्क्यू करते हैं. Because of they are maintaining all the things very smoothly, local self-government reduce the work of the central and state government by taking care of the civic amenities at the local level, by taking care of all the facilities, by helping the people. Okay, they reduce the workload of local, they reduce the workload of central or state government. The Panchayati Raj means the government at the local level, at the village level. In ancient time, in olden time in India, villagers managed their affairs through a body called Panchayat. विलेज का मैनेजमेंट होता था, वो पंचायत किया करती थी. आज भी वो बेसिक आइडिया है, जो वो बेसिक चीज़ है, वो आज भी प्रेजेंट है एट द विलेज लेवल. सो इन एंशियंट इंडिया विलेजर्स मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू अ बॉडी कॉल्ड पंचायत. द टर्म पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच. ठीक है, पंचायत आता है पंच शब्द से, और पंच का मतलब होता है 5. ओके, 5. सो विच वॉज यूज्ड फॉर द 5 विलेज एल्डर्स. ठीक है, 5 विलेज के जो बड़े बुजुर्ग, बड़े और बड़े सयाने जो लोग होते थे, वो पंचायत फॉर्म करते थे. हु सेटल्ड द डिस्प्यूट्स एंड टुक डिसीशन. वो लोगों के डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, या हम बोल सकते हैं जो झगड़े होते थे वो सॉल्व करते थे, और काफ़ी डिसीशन भी विलेज के लेवल पर लेते थे. टुडे ऑल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ फॉर रूरल एरियाज आर कॉल्ड पंचायत. आज भी जो लोकल गवर्नमेंट है विलेज लेवल पे, उन्हें हम पंचायत कहते हैं. They are formed as per the fixed rules, but they are formed according to the rules. We know our states are divided into districts, and districts are further divided into blocks, each of which has a number of villages under. Panchayat exists at all these 3 levels. So there are 3 levels of Panchayat. Okay, which are the 3 levels? They are Gram Panchayat, Block Samiti, and Zilla Parishad. Okay, so Panchayat exists at all these levels. This system of local self-government at 3 level is called Panchayati Raj. इस सिस्टम को हम कहते हैं पंचायती राज. In this system, a village has Gram Panchayat, a block has Samiti, Block Samiti, also known as Panchayat Samiti, and the district has a Zilla Parishad. Suppose, let's take one state, our state Gujarat. Okay, गुजरात में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना. सो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर. Okay, there are many districts like Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar. Okay, and there are many villages inside it. ठीक है, बहुत सारे villages तो है ही गुजरात में. Let's take an example. This is भावनगर डिस्ट्रिक्ट. ओके, भावनगर में भी बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस हैं. ओके, सो
Bhavnagar is also divided into many villages like Mahua, Palitana, Amreli, etc. So in this villages also there are many areas. Okay, village is also divided into areas. Each village is also divided into स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड वार्ड्स. ठीक है, एक गांव को भी डिवाइड किया है एरियाज में, यूनिट्स में, वार्ड्स में. ठीक है, और हर एक वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, एक गांव में चार या पांच वार्ड्स हैं. एक गांव में 5 वार्ड्स हैं और हर एक वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है और पंचायत फॉर्म हुई है. ठीक है, अब उन पंचायत जो फॉर्म हुई है वो पंचायत और ग्राम सभा या तो फिर सिर्फ ग्राम सभा, उन 5 में से भी एक को हायर पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे, यानी उन्हें सरपंच बनाएंगे, हेड ऑफ द पंचायत पंच. ओके, दैट इज सरपंच. अब पंचायत है वो कैसे बनती है? हाउ इज पंचायत फॉर्म्ड? द पंचायत इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्शन. द एडल्ट्स ऑफ द विलेज और सिटी कैन वोट, okay, and choose their representative. Okay, they can vote in election. For panchayat election, the area under the panchayat is divided into small units called constituency और wards. मैंने आपको समझाया कि एक विलेज को भी एरिया के हिसाब से, वार्ड्स के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं और वार्ड्स होते हैं, और सिटी में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, यानी एक सिटी या विलेज को भी फर्दर डिवाइड करते हैं और उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या एक वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके मेंबर बनता है. ईच ऑफ दिस इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years. तो ये जो चुनाव होता है, उस चुनाव में, उस इलेक्शन में जो भी मेंबर इलेक्ट होता है वो 5 साल के लिए अपना कार्य संभालता है. सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमन. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कुछ सीट वुमन के लिए रिजर्व्ड है. 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमन एंड अदर आर ऑल्सो रिजर्व्ड लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास. और कुछ सीट जो है वो SC, ST और OBC कैटेगरी के लिए भी रिजर्व्ड है. सो वुमन, SC, OBC, ST इन सब के लिए कुछ सीट्स रिजर्व्ड है. द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज. स्ट्रक्चर कैसा है? 3 लेयर्ड है. ओके, 3 टायर स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले लेवल पे, सो द फर्स्ट इज द विलेज लेवल, जहाँ पर पंचायत होती है. 5 लोग होते हैं. 5 लोग अलग अलग वार्ड में से सिलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं. सो पहला लेवल है ग्राम पंचायत. ग्राम मीन्स विलेज. ओके, ग्राम पंचायत. देन 4 or 5 ग्राम पंचायत टुगेदर्स एंड फॉर्म द पंचायत समिति, ऑल्सो नोन एज ब्लॉक समिति. जब 4 या 5 जो विलेजेस है वो इकट्ठा होकर एक ब्लॉक गिनने में आते हैं, वो एक ब्लॉक होता है, और ब्लॉक का जो होता है उसमें होता है पंचायत समिति, यानी 4 से 5 गांव के लोगों का ब्लॉक पंचायत होता है. सो ग्राम पंचायत इज आंसरेबल to block samiti and block samiti is answerable to
जिला परिषद। ओके, जिला परिषद क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ओके, द डिस्ट्रिक्ट लेवल सेल्फ गवर्नमेंट कम्स मीन्स जिला परिषद। Apart from this, elected members, local MLAs and MPs become members of block समिति and जिला परिषद। तो जो सिटी लेवल होता है, ठीक है, उसमें जो MLA लोकल MLAs सिलेक्ट होते हैं, या तो MPs यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब हम वोटिंग करते हैं तब हम किसको इलेक्ट करते हैं, MPs को, राइट। तो जो लोकल लेवल पे MP या तो MLA होते हैं, अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स, लोकल MLA एंड MP बिकम मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति यानी काफ़ी गांव होते हैं, वो ब्लॉक समिति को आंसरेबल होते हैं। Members of block samiti and zilla parishad. Also, all the head of gram panchayat of a block become members of block samiti. ठीक है, तो जो सरपंच होते हैं, जो गांव अलग अलग गांव है, उन सब में 5-5 लोग या कुछ लोग वहाँ पर जो है वो सब मैनेज करते हैं। पर उनमें से जो हेड होता है, यानी कि पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो सरपंच होता है, वो सरपंच जो होता है वो भी ब्लॉक समिति का मेंबर होता है। सिमिलरली ऑल द हेड ऑफ ब्लॉक परिषद, यानी ब्लॉक परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स आर कॉल्ड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एज दे बिकम मेंबर्स बिकॉज ऑफ द पोस्ट दे होल्ड। ओके, तो काफ़ी अपॉइंटेड, गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग भी मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बट दे आर द मेंबर्स बिकॉज ऑफ द ऑफिस पोस्ट दे आर होल्डिंग। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल पंचायत। हर एक पंचायत में स्टेट गवर्नमेंट का भी एक अपॉइंट किया हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है। इट अपॉइंट्स अ पंचायत सेक्रेटरी एट द ग्राम पंचायत। हर एक गांव में ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, पंच और सरपंच, उनके साथ सेक्रेटरी होता है जो अपॉइंटेड होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ होता है। ठीक है, इट इज दैट secretary is not elected but it is appointed by the state government. Okay, तो हर एक गांव में जो पंचायत होती है उसके साथ एक सेक्रेटरी भी होता है। उसका काम क्या होता है, ये देखना कि सब डेवलपमेंट वर्क, गांव का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, सारे पंच है वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, जो मनी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है विलेज के लिए वो प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, वेलफेयर एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहे हैं कि नहीं। सो द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव इन ब्लॉक समिति। वैसे ही ब्लॉक समिति में भी गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेटिव रखती है। And an officer of the rank of a district magistrate is appointed to जिला परिषद। जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ पर हमें पता है कि IAS ऑफिसर जो होता है, गवर्नमेंट पोस्ट होती है, सिविल सर्विस होती है, उस पोस्ट के व्यक्ति को भी जो है स्टेट गवर्नमेंट वो जिला परिषद के एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जिला परिषद अपॉइंट करती है। ठीक है, तो जो हमारे कलेक्टर्स होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स होते हैं, या तो हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट होते हैं, वो अपॉइंट हुए होते हैं जिला परिषद के मेंटेनेंस के लिए। दिस ऑफिसर्स, ये सारे ऑफिसर्स क्या करते हैं, दे मेक श्योर दैट द प्रॉपर फंक्शनिंग इज गोइंग ऑन ऑफ द पंचायत्स।
What are the functions and what are the sources of income of पंचायत? गांव में पंचायत होती है, उनका फंक्शन क्या होता है, उन्हें इनकम कहाँ से मिलती है, फंड कहाँ से मिलता है? The panchayat mainly work in the areas of education, agriculture, animal welfare, water supply, road, cottage industries, etc. तो पंचायत का क्या काम होता है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, स्कूल, बिल्डिंग, आंगनवाड़ी और कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो क्या मेंटेन करते हैं? वो लोग ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन, हमारे विलेज में प्रॉपर एजुकेशन मिले सबको, एग्रीकल्चर अपना अच्छे से हो, एनिमल वेलफेयर हो, वाटर सप्लाई बरोबर से मेंटेन हो, देयर शुड नॉट बी स्केर्सिटी ऑफ वाटर, ड्रेनेज प्रॉपरली हो, स्कूल, बिल्डिंग और कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस करते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के भी सोर्सेस है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनका क्या काम होता है? टैक्स कलेक्शन भी उनका काम होता है। ये सारे हम लोग उनकी जो वर्क है, उनका ड्यूटीज़ है, वो हम सब पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टू डू देयर वर्क द पंचायत नीड मनी। अब ये सारा काम करने के लिए उन्हें पैसे तो चाहिए, उन्हें फंड चाहिए। फ्रॉम वेयर डज दिस फंड कम? दे गेट सम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है उन्हें फंड। कैसे प्रोवाइड करती है? वो जो जिला परिषद होते हैं उन्हें अलॉट करती है, गांव के लिए फंड अलॉट करती है। दे गेट सम फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। दे ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, फेयर्स एक्सेट्रा। वो लोग टैक्स कलेक्शन करते हैं हाउसेस का, ठीक है, घर हाउस टैक्स लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, लैंड टैक्स लेते हैं, और मार्केट प्लेस पे जो शॉप होती है तो उनका भी वो लोग टैक्स लेते हैं। तो वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो लोग रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी कलेक्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होता है? जब कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है, ठीक है, अपनी ज़मीन या अपनी मिल्कत बेचता है, अपना घर बेचता है या कुछ प्रॉपर्टी बेचता है, तब उस पर रजिस्ट्रेशन फ़ी लगती है। और जब वो अपना कैटल मीन्स जब अपने भैंस, गाय और ऐसे सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो कैटल होते हैं वो बेचते हैं, वो सेल करते हैं, तभी भी उनके ऊपर कुछ फीस लगती है। उनके अलावा उन्हें काफ़ी डोनेशन भी मिलते हैं, डोनेशन फ्रॉम कम्युनिटी वर्कर्स। ओके, कम्युनिटी में जो बहुत ही रिच और बहुत ही वेल इक्विप्ड लैंडलॉर्ड्स होते हैं वहाँ पर, वो भी कुछ ना कुछ डोनेशन देते हैं और उन्हें फंड गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है। सो नाउ दैट यू नो इन जनरल हाउ पंचायत आर फॉर्म्ड एंड देयर फंक्शंस एंड सोर्सेज ऑफ इनकम, let us learn a bit more about the panchayat at 3 levels. तो हम लोग पढ़ेंगे पंचायत एट द विलेज लेवल। द विलेज पंचायत कंसिस्ट ऑफ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। विलेज पंचायत में क्या क्या आता है अंदर? ग्राम सभा आती है, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ओके, ग्राम सभा। ग्राम सभा, ग्राम मीन्स विलेज। Every villager above the age of 18 years whose name is in voters list is a member of the ग्राम सभा। अभी ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा इज अ मीटिंग। ओके, इट इज अ मीटिंग wherein सरपंच, the पंच members, the secretary and the villagers who are having the voting right,
they all together have a meeting, and that is known as Gram Sabha. So Gram Sabha is a meeting wherein the adult villagers, the Panch, the Sarpanch and the secretary appointed by the government is present. They discuss various matters. Okay, the Gram Sabha elect the members and the head of the Gram Panchayat. अभी जो गांव के लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट है, वो सारे गांव के लोग क्या करते हैं, अपने विलेज में से ही, अपने वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, है ना। अब जो वोट जिनको मिला है, मैक्सिमम वोट मिला है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन जो 5 या 6 ऐसे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव चूज हो गए होते हैं, उनके बाद उनमें से भी ग्राम सभा के लोग एक को हेड बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, दैट इज द सरपंच, द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम सभा. The Gram Sabha elects the members and the head of the Gram Panchayat. The Gram Sabha reviews the work and accounts of the Gram Panchayat. ठीक है, ग्राम सभा क्या करती है, रिव्यू भी करती है कि अच्छे से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इट कैन ऑल्सो रिमूव करप्ट और इनएफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत जो है, ठीक है, गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल है. दे आर हैविंग द पावर्स एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, इनमें से ही वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और उनका काम भी देखते हैं कि वो प्रॉपरली हमारे गांव के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. पर वो रिमूव करवाने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, वो उन्हें फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो जो गांव के लोग होते हैं, विलेजर्स, जिनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जो एडल्ट विलेजर्स होते हैं, वो अपने मेंबर्स को चूज़ करते हैं. वो मेंबर्स को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ग्राम सभा में, मीटिंग में, कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है, या ये इश्यू है, आप इनका कुछ सॉल्यूशन निकालो. प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन होता है. ठीक है, क्या होता है, अगर कोई सोशल इश्यू है या पानी की कोई समस्या है या डेवलपमेंट की कुछ प्रश्न है या बीपीएल बेनिफिट्स है, ठीक है, तो ये सारे मैटर्स है, वो ग्राम सभा में जो पब्लिक है, जो एडल्ट विलेजर्स है, वो पंचायत के साथ डिस्कस कर सकते हैं. इन दिस इमेज यू कैन सी, दिस इमेज इज ऑफ अ ग्राम सभा. ग्राम सभा इन सेशन. आप देख सकते हो कि जो पंचायत है, ठीक है, और जो पंच है वो आपको देखेंगे यहाँ पर बैठे हैं. ठीक है, और यहाँ पर दूसरी पब्लिक है. ओके, विलेजर्स है. द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा. ठीक है, ग्राम पंचायत में एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेक्रेटरी होता है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी काम करता है और जो विलेजर्स के लिए भी, यानी ग्राम सभा का भी एक सेक्रेटरी होता है. ठीक है, वो दोनों रोल्स प्ले करता है. ग्राम पंचायत comprises of the पंच, सरपंच and the secretary. The ग्राम पंचायत takes decision and organize the work of पंचायत.
It consists of the members elected by Gram Sabha. The Mukhya, who is also elected by the Gram Sabha, is the head of the Gram Panchayat. तो ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है? सरपंच यानी कि मुखिया, पंच यानी कि जो 5 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो, और सेक्रेटरी. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सब डिसीजन लेते हैं और सब मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड रोड एंड ब्रिजेस इन द विलेज. तो ये क्या करते हैं? सारा इंफ्रा के ऊपर ध्यान देते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देते हैं. दे लुक आफ्टर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, roads, constructions of roads and bridges, and also of the maintenance of the common public property. ये सारा काम वो करते हैं. It records the birth and the death. वो क्या करते हैं? विलेज में कोई बर्थ हो रहे हैं, कहीं डेथ हो रही है, तो उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. It may also set up market and organize the fair and sporting activities and maintain radio and TV sets for the community. ये काम भी वो लोग करते हैं कि वो लोग मेला लगवाते हैं, मार्केट लगवाते हैं, ठीक है, और एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और रेडियो और टीवी भी अपनी कम्युनिटी के लिए, रेडियो और टीवी की फैसिलिटी के लिए भी काम करते हैं. द न्याय पंचायत. द न्याय पंचायत इज द विलेज कोर्ट. न्याय मतलब जस्टिस, ठीक है, जो जस्टिस होता है, जहाँ पर हम जा सकते हैं जस्टिस के लिए. ठीक है, द न्याय पंचायत इज द विलेज कोर्ट. ठीक है, कोर्ट्स भी बहुत लेवल के होते हैं, राइट. तो न्याय पंचायत क्या है? विलेज लेवल का एक काइंड ऑफ कोर्ट है. इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड पंच. इसके मेंबर्स को भी हम पंच कहते हैं. एंड इट इज़ हेडेड बाय सरपंच. ठीक है, और न्याय पंचायत के हेड को भी हम सरपंच कहते हैं. दे आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा. ग्राम सभा ही इलेक्ट करती है. जो बड़े सूझबूझ वाले, बुद्धिमान, तजुर्बे वाले जो बड़े लोग होते हैं गांव में, वो बनाते हैं न्याय पंचायत. द न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड्स माइनर केसेस. जो छोटे मोटे केसेस होते हैं जिनकी वजह से गांव में कुछ झगड़ा होता है या कुछ ऐसा काम होता है, तो पंचायत उनकी बातों को सुनती है, समझती है, ठीक है, और डिसीजन लेती है, झगड़ा सुलझाती है. ठीक है. इट कैन फाइन एंड पनिश द गिल्टी. जो दोषी होता है उन्हें वो पनिशमेंट भी दे सकती है, या तो उन पे फाइन भी लगा सकती है विथ सर्टन लिमिट. पर उनकी एक सर्टन लिमिटेशन होती है. ओके, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर वेल डिफाइंड कोर्ट. ठीक है, वो न्याय पंचायत है, तो वहाँ पर विलेज लेवल पे वो लोग कुछ फाइन लगा सकते हैं या कुछ छोटी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट दे कैन नॉट इम्प्रिजन द गिल्टी. वो लोग जेल में बंद नहीं कर सकते, राइट. इट हेल्प्स द विलेजर्स टू गेट स्पीडी जस्टिस एट देयर लिटिल कॉस्ट. ठीक है, इससे क्या होता है? न्याय पंचायत होती है, गांव की बात गांव में रहती है. गांव के जो लोग होते हैं ना, जो ग्राम पंचायत होती है, वो विलेजर्स यानी गांव के लोगों की ऐसी जो झगड़ा होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व करके उनको जस्टिस देती है. स्पीड में उनका जो मामला होता है वो सुलझाती है. ठीक है, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में. द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉक समिति. ठीक है, तो हमने गांव की बात की. अभी बहुत सारे जब गांव होते हैं, 4 या 5 गांव, ठीक है, 4 to 5 विलेजेस टुगेदर, उनके जो हेड्स होते हैं वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं.
स्टेट विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 लाख हैव ब्लॉक समिटीज़। ठीक है, जहाँ पर जो स्टेट में 20 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है वहाँ पर ब्लॉक समिति होती है। मेंबर्स ऑफ अ ब्लॉक समिटी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक यानी विलेजेस, ठीक है, या तो एरियाज। ठीक है, तो वो रीजन के लोग अपने मेंबर सिलेक्ट करते हैं। द ब्लॉक समिटी ऑल्सो हैज़ सम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी नॉन इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर हैविंग सम अपॉइंटेड मेंबर्स ऑल्सो विच आर सेंट बाय द गवर्नमेंट। Okay, the members of the block committee elect a chairperson called प्रमुख। ठीक है, तो अलग अलग गांव के जो मेंबर्स सरपंच होते हैं वो ब्लॉक समिति के मेंबर्स बनते हैं, और सब मेंबर्स में से भी कोई एक होता है वो ब्लॉक समिति का चेयरपर्सन होता है। ओके, और उसके डेप्यूटी यानी कि वाइस चेयरपर्सन भी होता है, यानी उप प्रमुख। ठीक है, तो ब्लॉक समिति में भी एक सरपंच यानी कि चेयरपर्सन होता है, प्रमुख होता है, और एक वाइस चेयरपर्सन यानी उप प्रमुख होता है। द ब्लॉक समिति सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ब्लॉक समिति का क्या काम है? वो सुपरवाइज करती है, ओके, वो फाइंड आउट करती है कि ग्राम पंचायत बरोबर से काम कर रहा है, गांव सारे जो भी हमारे अंडर में है वो प्रॉपरली उनका फंक्शनिंग और डेवलपमेंट हो रहा है। द ब्लॉक समिति ऑल्सो लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट इन द ब्लॉक। इट अरेंजेस फॉर प्राइमरी एंड एडल्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड वैक्सीनेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सीवरेज एंड सीड्स एंड फर्टिलाइज़र फॉर फार्मर। ब्लॉक समिति का क्या काम होता है कि वो प्राइमरी या एडल्ट एजुकेशन यानी हायर क्लास, ठीक है, उसके लिए भी वो अरेंजमेंट करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीनेशन जिससे हम कहते हैं रसीकरण, ठीक है, तो रस्सी दिलवाने के लिए भी वो कैंपेन का आयोजन करते हैं। सबको अच्छा और स्वच्छ पानी मिले उसके लिए भी वो प्रयास करते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं उनको लो रेट में सीड्स और फर्टिलाइज़र भी प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रमोट्स द कॉटेज इंडस्ट्री एंड अरेंजेस फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है कि सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, फार्मर है वो और उसकी फैमिली सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, वो अपने ही खेती के काम में व्यस्त रहती है। The third and the uppermost local self-government is Zilla Parishad. The people of a district elect the members of Zilla Parishad. ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग अलग जोन्स में डिवाइड होता है एक डिस्ट्रिक्ट, यानी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है, और यहाँ के जो पीपल है वो ज़िला परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। द ज़िला परिषद ऑल्सो हैज़ सम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर हर एक लेवल पे है, तीनों लेवल पे है। ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत के लेवल पे है, ब्लॉक समिति के लेवल पे भी है, और ज़िला परिषद के लेवल पे भी एक्स ऑफिशियो मेंबर है। It has a president and vice president who are elected by the members from among themselves, यानी जो हमने सिलेक्ट की है, ठीक है, अर्बन रीजन हमारे डिस्ट्रिक्ट में से हमने जो कैंडिडेट्स थे उनमें से हमने मेंबर्स को चुना। अब वो मेंबर्स अपने अंदर ही अंदर एक को प्रेसिडेंट और एक को वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं। The Jilla Parishad supervises the work of block समिति and ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत और ब्लॉक समिति वो दोनों किसको आंसरेबल है? वो दोनों आंसरेबल और अकाउंटेबल है जिला परिषद को। जिला परिषद सुपरविजन करती है इन दोनों लेवल्स का। इट एग्जामिन्स द बजट ऑफ द ब्लॉक समिति, वो बजट
लेती है ब्लॉक समिति से और गवर्नमेंट के फंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ब्लॉक समिति में जो ऊपर से पैसे आए होते हैं गवर्नमेंट में से, स्टेट गवर्नमेंट में से या सेंट्रल गवर्नमेंट में से जो फंड आया होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिपेयर्स प्लान फॉर इट। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट के प्लान्स बनाती है और एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करने के लिए वो गवर्नमेंट जो है उससे एडवाइस भी लेती है, उसको एडवाइस भी देती है। ओके, सो जिला परिषद का क्या काम होता है, वो एक तो दोनों लोअर लेवल यानी कि ब्लॉक समिति और विलेज ग्राम पंचायत, उन दोनों को सुपरवाइज करती है, उन दोनों को एडवाइस करती है, उनको फंड जो फंड मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से उसको मैनेज करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को से एडवाइस लेती है। ठीक है, और डेवलपमेंट करवाने के लिए गवर्नमेंट को भी एडवाइस देती है और प्लान बनाती है डेवलपमेंट का, और मैनेजमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है। ओके, in this lecture we will study till this much. In the next lecture we will study about municipalities. ठीक है, तो आपको रीड करना है यहाँ तक चैप्टर। ओके, you have to read the chapter till this topic. Okay students, bye, take care.